Yes, so here you all can see the question answers. Okay, yeah. So I hope you all can see the question answers on the screen. Okay, yeah. So we will do through the question answers of chapter 6, the human body. Already exercises we have done in the previous class. I hope all have completed in the textbook. Okay, and also learned them. So today we have 5 question answers. We will do that. Okay. So let us go to the first one. How many organ systems are there in a human body? Name them. तो यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं. ओके. सबसे पहला व्हाट इज दैट? हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स कितने हैं ह्यूमन बॉडी में? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज हमें उनके नेम्स भी लिखने हैं. ओके. और एग्जाम में आप ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन मिलता है तो भी आप दोनों के आंसर लिख देते हो. तो आपको जो अगर एक पूछा जाए तो आपको एक ही लिखना होता है. अगर आपको मान लो खाली पूछा जाए कि हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर, तो आप खाली उसी का आंसर लिखेंगे. हाउ मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी. ओके. So as you all, I think you remember, I told you that there are mainly 8 organ systems in the human body. Okay, we have 8 organ systems in the human body, and their names are as follows. You can see the first one, breathing or respiratory system. Second, digestive system. Third, skeletal system. Fourth, muscular system. 5, circulatory system. 6, nervous system. 7, excretory system. And 8, reproductive system. I hope you remember the meanings of all these organ systems. ओके. ब्रीथिंग मीन्स सांस लेने वाला. ओके. एंड डाइजेस्टिव जो खाना पचाने वाला सिस्टम. एंड देन स्केलेटल सिस्टम मतलब द बोन्स. एंड मस्कुलर सिस्टम द मसल्स. दिस इज रिलेटेड टू द मसल्स. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम दैट इज द ब्लड. हमारे पूरे बॉडी में कैसे पहुंचता है फ्रॉम हार्ट टू all the parts of the body, how the blood reaches. And nervous system that is about the brain, the nerves and the spinal cord. कैसे जो brain जो है messages पहुंचाता है to all the organs. How all the 5 sense organs are attached to the brain. Okay, that is the nervous system. And excretory system, the waste. हमारे body से जो waste है वो कैसे बाहर निकलता है. That is the excretory system. And then the reproductive system, that is the reproductive system. It helps to produce babies. Okay, बच्चे पैदा. So these are the 8 organ systems. Okay, you have to write them in the notebook in this way. Okay, there are 8 organ systems in a human body. They are breathing system, first A, the next digestive system, skeletal system, muscular system, circulatory system, nervous system, excretory system and reproductive system. ऐसे ही आपको A, B, C, D लिख के H तक आपको जो है अलग अलग लाइन में लिखने हैं the names of all the 8 organ systems. Okay, then we will go to the next question. Second question, why should you breathe through your nose? कई बार आपने देखा होगा जब आपको जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाती है तो हम लोग जो है मुंह से सांस लेते हैं. तो लेकिन ये मुंह से हम लेते तो है लेकिन वो गलत होता है. सो वाई, क्यों गलत होता है? वाई शुड यू ब्रीथ ऑलवेज? हमें हमेशा सांस जो है नाक से ही लेनी चाहिए. क्यों लेनी चाहिए? ओके, सो बिकॉज इन आवर नोज we have hairs are there inside the nostril. जो हमारे nostrils हैं उनके अंदर hairs होते हैं और जो कि dust particles और germs को रोक लेते हैं. They don't allow them to enter into the body. Okay, so that's why we should always breathe through the nose, not through our mouth. Okay, yeah, who is speaking? Kindly mute your mics. Okay, yes, mute your mics. Who is that? Saksham, mute your mic. Yes.
So we should always breathe through our nose because the hairs that are present in the nose, they trap the dust particles and germs that are present in the air. They don't allow the germs और dust particles को हमारे नाक में जाने नहीं देते, हमारे बॉडी के अंदर जाने नहीं देते. इसीलिए हमेशा सांस जो है नाक से ही लेनी चाहिए. Okay, so what you will write the answer? So here, yes, you can see, yeah. मैम बट अगर सांस नहीं ले जाए नोज से जुकाम हुआ मैम तब सांस कैसे लें? क्या बोला बेटा आपके? आप समझ में नहीं आई मुझे, दोबारा रिपीट करो. मैम जब जुकाम हुआ हो तब नोज जाम हो गई हो मैम, Yes. तब तो नोज से सांस Yes. नहीं ले सकते मैम. तो आपको जो है उसके लिए आपने प्रॉपर उपाय करने चाहिए. स्टीम लो और नाक को खोलो. ओके, मेडिसिन लो, स्टीम लो. ओके, जिससे कि आपकी नाक जल्दी से जल्दी खुल जाए. ओके, सो आंसर क्या लिखेंगे? वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर नोज बिकॉज द हेयर इन द नोज traps the dust particles and germs present in the air. Okay, so dust particles और germs को trap कर लेते हैं और हमारे बॉडी में अंदर नहीं जाने देते हैं. Okay, so next, third question. What is digestion? Okay, digestion क्या होता है? What is digestion? So digestion क्या होता है? जो फूड हम खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब वो टूट जाता है और जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनके साथ मिल जाता है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन. ओके, तो क्या लिखेंगे हम इसका आंसर? द चेंजिंग ऑफ फूड इनटू अ सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. जो हम फूड खाते हैं वो बड़े बड़े पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में हमारे बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है. तो सिंपल फॉर्म में चेंज करना फूड को, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन. ओके, नाउ लेट अस गो. यस, नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही बेटा? बाकी सबको तो आ रही है बेटा. कौन बोल रहे हो? नाम बताओ बेटा अपना. मैम अच्छे से नहीं आ रही टीचर पे. यो, क्योंकि किसी का माइक ऑन है अपनी क्लास में. ओके, समवन्स माइक इज ऑन, सो प्लीज म्यूट इट. कौन है ये? किसका माइक ऑन है? प्लीज म्यूट योर माइक्स एवरीवन. आवाज नहीं आ रही. या म्यूट योर माइक्स एवरीवन. अगर आप लोग सब म्यूट रखेंगे तो सबकी आवाज अच्छे से सुनाई देगी. ओके, सो नाउ लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ. हाउ आर किडनीज एंड स्किन यूजफुल टू अस? तो किडनीज एंड स्किन कैसे यूजफुल है हमारे लिए? तो आई टोल्ड यू कि किडनीज और स्किन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है. एक्सक्रीटरी मतलब कि वेस्ट जो होता है हमारे बॉडी में उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं. किडनीज, स्किन एंड वन मोर आई टोल्ड यू लंग्स. लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ओनली किडनीज और स्किन के बारे में पूछा गया है, तो हम ओनली उनके बारे में लिखेंगे कि हाउ दिस किडनीज एंड स्किन आर यूजफुल टू अस. तो किडनीज क्या करती है? दे थ्रो आउट वेस्ट. हमारे बॉडी में जो वेस्ट बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन के फॉर्म में किडनीज वेस्ट को बाहर निकालती है. और स्किन कैसे वेस्ट को बाहर निकालती है? पसीने के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. ओके, पसीने को इंग्लिश में स्वेट बोलते हैं. सो द स्किन रिमूव्स द वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. तो किडनीज क्या करते हैं? दे रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्किन दे रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट. Okay, so here you can see the answer. Yeah, kidneys throw out waste in the form of urine and the skin removes the waste in the form of sweat. Okay, अगर आपको एग्जाम में खाली किडनीज का पूछा जाए तो आप ओनली किडनीज के बारे में ही लिखेंगे. ये नहीं है कि आप लोग पूरा ही लिख देते हो. तो ये तो आप लोग रट्टे मारते हो, फिर आप लोग क्वेश्चन को समझते नहीं हो कि क्वेश्चन क्या पूछा गया. अगर खाली स्किन के बारे में पूछा गया तो आपको ओनली स्किन का लिखना है कि स्किन रिमूव्स वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ sweat. Okay, so now let us go to the last question 5. What is the function of heart? Heart का जो है काम क्या है? What is the work of the heart? तो heart क्या करता है? ब्लड पहुंचाता है पूरे बॉडी में ना, प्योरीफाई भी करता है ब्लड को एंड देन इट सर्कुलेट्स इट टू द होल बॉडी. पूरे बॉडी में पहुंचाता है ब्लड को. सो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? यस,
The heart pumps blood to different parts of the body. तो इसका आंसर क्या है? हार्ट जो है पंप करता है ब्लड को, ओके, टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड वेसल्स. मैंने आपको बताया था कि वो रेड एंड ब्लू कलर की जो है वो हमारे बॉडी में वो ब्लड वेसल्स होती है, ओके. तो कुछ जो है वो बॉडी में अंदर लेकर आते हैं ब्लड को, और कुछ जो है वो बाहर लेके जाते हैं प्योर ब्लड को, ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर लेकर जाते हैं. So the heart, it pumps blood to different parts of the body. So that's all. You have to write all these question answers neatly in your notebook. Okay, and you have to also learn them. Now your exams are going to begin, I think, soon. Okay. So now we will go back to the class. If you have any doubt, now you can clarify if you have any doubt now in the class. Thank you, children.